مرکزی جامع مسجد حنفی عباسپور کا بیرونی منظر، 3 منزلہ مسجد جس میں نمازیوں کی کتنی تعداد آتی ہے، پوچھیں گے ادارہ حاضہ کے مدرس مفتی ظفر صاحب، جو انتہائی کم عمری میں 30 سے 35 سال کی عمر کے یہ نوجوان، اور یہ ہمیں بتائیں گے یہ ایک صف میں کتنے آدمی آ جاتے ہیں۔ ایک صف میں تقریباً 100 کے لگ بھگ نمازی آ جاتے ہیں تقریباً مجموعی طور پر مسجد میں کتنے؟ مجموعی میں تقریباً 8 صفیں مسجد کے اندر، تقریباً 1000 کے لگ بھگ مجمع مسجد کے اندر آ جاتا ہے صفوں میں۔ تو 3 منزلوں 3 اور منزلوں میں باہر جو تقریباً برآمدہ، 3000 اور حسین کے ساتھ ملا کے اس کے نیچے بھی میرے خیال میں ایک بیسمنٹ بھی ہے۔ جی بیسمنٹ بھی ہے۔ 3000 سے زائد نمازی بیک وقت یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جامع عائشہ صدیقیہ یہ گرلز کیمپس ہے، یہاں پر طالبات دین کے علم کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ، ایک صف میں 100 سے زائد نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔ مولانا اشفاق مرحوم کی محنت شاقہ کے نتیجے میں تیار ہونے والی ہزاروں نفوس کو سمانے والی یہ خوبصورت مسجد دیدہ زیب نظارے پیش کر رہی ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں مولانا اشفاق احمد ربانی صاحب کے بارے سے؟ کیا ان کے علاوہ مسجد کیسی لگ رہی ہے؟ مسجد تو سب کچھ ویسا ہے، لیکن ان کی کمی تو بہرحال بہت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ خلا تو کبھی پور نہیں ہو سکتی۔ کتنا عرصہ آپ نے کام کیا ہے ان کے ساتھ؟ میں نے تقریباً 10 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ کیا محسوس کیا؟ ان کے اخلاق کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ بہت عالی اخلاق کے انسان تھے، بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا، ان کے ساتھ رہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کیا کہیں گے مولانا اشفاق احمد ربانی سے؟ یہ ادارہ حاضہ کے مدرس ہیں جناب، کا نام محمد نعیم جناب۔ اچھا، کیا کہیں گے مولانا اشفاق احمد ربانی صاحب سے؟ مولانا اشفاق احمد ربانی صاحب کے ساتھ میرے بہت کم وقت گزرا، لیکن اس میں بہت کچھ سیکھا، اور بہت بڑے ایک اعلیٰ شخصیت تھے، جو ہمارے پورے آزاد کشمیر میں ایک نمایاں شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت تھے۔ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ نمایاں تھے، ہر مجمع کے اندر ہر جگہ پہ نمایاں تھے۔ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہوئے یہ ان کے چاہنے والے اور اس مسجد کے اندرونی بیرونی حصص ہم نے ادارہ حاضہ کے مدرس قاری شہزاد صاحب، پوچھیں گے ان سے کب سے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں، اہلیان عباسپور کے پیار کو کیسا پایا؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس ادارے میں کب سے تدریس فرما رہے ہیں؟ تقریباً 17 سے 18 سال ہو چکے ہیں۔ اہلیان عباسپور کے پیار کو، محبت کو، الفت کو، مودت کو کیسے پایا آپ نے؟ بہت اچھا، الحمدللہ۔ مولانا اشفاق احمد ربانی صاحب کے ساتھ آپ ایک عرصہ تک رہے، ان کی یاد میں کوئی فکرات؟ 17 سال تک رہا۔ کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ کیسا پایا ان کو اخلاق کے حوالے سے؟ بہت ہی اچھا، انہیں کی دستی شفقت اتنا عرصہ یوں پہ رہا۔ بہت شکریہ۔ دارالعلوم حنفیہ عباسپور کے طلباء جو اس وقت قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं शहदा की सरज़मीन अब्बासपुर पर, और अब्बासपुर बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े दीनी तालीमी इदारे मदरसा दारुल उलूम तालीमुल इस्लाम हनफिया अब्बासपुर, इन के दफ्तर में आज मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त अदारा हाजा के मोहतमिम मौलाना खलीकुर रहमान साहिब, उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात और सेहत ख़राबी के बायस टाइम दिया। रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इस मरकज़ की तारीख़ और इस मरकज़ के शोबाजात के हवाला से हम उनसे मुख्तसर सी नशिस्त करेंगे। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया और उसके बाद अपने नशिस्त का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम इशफाक अंजुम साहब का। वो हमारे इस इदारा में तशरीफ़ लाए और इदारा की मुख्तसर तारीख़ जो है वो अपने इस चैनल के हवाला से ये हमारे क़ारीन तक पहुंचाना चाहते हैं। मोहतरम दारुल उलूम तालीमुल इस्लाम हनफिया अब्बासपुर, इसकी बुनियाद जो है वो 1951 में रखी गई थी, और उस वक्त के जो अहबाब थे बड़े, सरदार फ़तेह मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस शहर को आबाद करने में अपना किरदार अदा किया, और उस वक्त हमारे इस खित्ता की इल्मी शख्सियत थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान टाटवी साहब, फ़ाज़िल दारुल उलूम देवबंद। उन हज़रात ने इसकी बुनियाद रखी थी, और उसके बाद बतदरीज ये इदारा तरक्की करता गया, परवान चढ़ता गया। मुख्तलिफ़ अकाबिर इसके अंदर रहे हैं। हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान टाटवी साहब, मौलाना खलील अहमद साहब का भी इसके अंदर कलीदी किरदार रहा। उसके बाद मेरे वालिद साहब मौलाना अता रहमान साहब, और उनसे पहले मौलाना अमीर ज़मान साहब हज़ारा के थे, मौलाना यूनुस अज़ावी साहब थे। हमारे आज़ाद कश्मीर के जय्यद आलिम दीन हज़रत मौलाना इलियास खान साहब रशीद साहब, ये सारे हज़रात मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर यहाँ पे रहे और अपने अपने दौर के अंदर उन्होंने काम किया इस इदारा के अंदर। 1983 के हज़रत मौलाना इशफाक रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मौलाना यूसुफ खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर, और उस वक्त से लेकर जनवरी 2022 तक वो यहाँ की मरकज़ी मस्जिद के ख़तीब और इस इदारा के मोहतमिम रहे। और उनके दौर के अंदर इस इदारा ने तामीराती तरक्की भी की और तालीमी तरक्की भी की, और ख़ूबसूरत मस्जिद की तामीर भी हुई। और साथ साथ जहाँ पे इस इदारा में तलबा का बनीन का मदरसा था, वहाँ पे साथ साथ मेरे वालिद साहब और मौलाना इशफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह की काविशों से 1995 में यहाँ पे बच्चियों की तालीम के लिए एक इदारा कायम किया गया, जो मौसूम है जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के नाम से। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारा के अंदर तदरीसी और गैर तदरीसी जो अमला है तकरीबन 22 अफराद काम कर रहे हैं, और शोबा हिफ्ज़, नाज़िरा, शोबा कुतुब, तजवीद, बनीन के अंदर हमारी इस वक्त दर्जा राबिया तक क्लासें चलती हैं, और बनात के अंदर दौरे हदीस तक हमारी क्लासेस चल रही हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चों की तादाद है वो तकरीबन 243 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, और इसी तरह 150 के लगभग हमारी तालिबात हैं जो इस इदारा के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। और हर साल वफाकुल मदारिस के तहत कई तलबा और तालिबात यहाँ से
फ़रागत हासिल करते हैं, सनद फ़रागत लेके जाते हैं। अल्लाह पाक इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। हमारे असातिज़ा कराम मेहनती असातिज़ा कराम है, मुशफ़िक़ असातिज़ा कराम है, और अक्सर हमारे असातिज़ा कराम का ताल्लुक़ इसी इलाक़ा के साथ है, मकामी है सारे के सारे, और हमारी मुअल्लिमात जो हैं वो सारी की सारी यहाँ की मकामी हैं, जो इस इदारा के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और इदारा के हमारे माहाना अखराजात जो हैं वो तकरीबन 6 लाख के लगभग इस वक्त हमारे अखराजात होते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल से और हमारी इस अवाम इलाका की भरपूर तावन से जो है ये सिलसिला चलता है। अगरचे थोड़ा सा इसके अंदर हमारा हुकूमती जो हुकूमत की तरफ से महकमा जो है उशर ज़कात जो है उसकी तरफ से जो तावन मिलता है हमें सालाना, वो 2 अक़सात की सूरत में मिलता है। 6 माह की एक किस्त होती है, और वो अभी तकरीबन 3.5 लाख के लगभग एक किस्त हमारी आती है। तो इस तरह ये इदारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा है। और तामीराती काम इस वक्त हमारे जो शुरू हैं, हमारी मस्जिद की जो तीसरी मंजिल है उसका काम अभी अधूरा है। वो काम हमारे पीछे मदरसतुल बनात की इमारत है, उसका काम जारी है, उसका काम आहिस्ता आहिस्ता हमारा जारी है। तो मैं मुखय्यर आज़ाद से जिस तरह पहले भी हमारे इस इदारा के साथ वालिहाना उनकी अक़ीदतें भी हैं और तावन भी करते हैं, फिर उनसे मुल्तमिस भी हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन हज़रात ने हमारे इस इदारा के साथ जिस एतबार से भी तावन किया, अच्छे कलिमात के ज़रिए से तावन किया, अपने माल और जान के एतबार से तावन किया। तो अल्लाह पाक उनके तावन को कबूल फ़रमाए। और साथ साथ जो अभी हमारे शोबाजात चल रहे हैं और इनके ऊपर जो अखराजात हो रहे हैं, जो हज़रात इसके साथ तावन करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, और हमारे अकाबिरीन जो दुनिया से चले गए उनकी कबूर को मुनव्वर फ़रमाए। हमारे इस इदारा की शुरू से लेके एक जानदार मुंतज़िमा कमेटी है जो शुरू से लेके आज तक चल रही है। इससे पहले इस कमेटी के मुख्तलिफ़ सदूर रहे हैं, दरमियान में हाजी सरदार अफजल ख़ान साहब की सदारत में ये इदारा चलता रहा। फिर उसके बाद उनकी रहलत के बाद हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान रिटायर्ड सदर मौलम सरदार मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब मग़फ़ूर व मरहूम इस इदारा के सदर रहे, मुंतज़िमा कमेटी के, उनके ज़ेर सरपरस्ती ये इदारा चलता रहा। अब उनकी रहलत के बाद हमारी मुंतज़िमा कमेटी के सदर जो हैं सरदार आबद अयूब ख़ान साहब एडवोकेट कर रहे हैं, और उनकी सारी के सारे जो दोस्त हैं बाएतमाद पूरे के पूरे इदारा के साथ मुंसलिक लोग हैं और इदारा के ऊपर अपनी जानों को खपाने वाले लोग हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक सारे अहलियान अब्बासपुर और इसके इदारा के मुल्हिका जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, बैरूनी मुल्क के अंदर हैं, ममालिक के अंदर हैं, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर और बदला अता फ़रमाए। हमारी जो आवाज़ पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं हमारे भाई इशफाक अंजम साहब, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए। इन्होंने जो वक्त दिया और हमारे इदारा के अंदर तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनके आने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा मौलाना, ये सवाल इसी से मुत्तसिल है कि बाज़ लोग जो हैं इस वक्त दुनियादार लोग, वो अक्सर मदारिस पे ये सवालात उठाते रहते हैं कि कुरान करम जो होते हैं, ये जो हिफ्ज़ करने वाले बच्चे होते हैं, इनकी मार कुटाई बहुत करते हैं। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अब मोहतरम, तालीम के जो सिलसिला है इसमें अदब का होना बहुत ज़रूरी है, और अदब के लिए ज़रूरी नहीं है कि मार ही हो। ये बहुत पुरानी बातें हैं कि पहले सिर्फ दीनी मदारस ही के अंदर नहीं मार होती थी, कुटाई होती थी, बल्कि दीगर इदारों के अंदर भी गोशमाली अच्छी तरीके से होती थी। और मौजूदा जो दौर है, ये दौर जो है ये मार कुटाई का दौर नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छे इदाराजात हैं उनके बढ़ने का जो उक़दा है, उनके आगे जाने का जो उक़दा है, वो है ज़हन शनासी और नबज़ शनासी। वही तालिब इल्म और वही उस्ताद और वही इदारा कामयाब है कि जो उस्ताद अपने तालिब इल्म की नबज़ शनासी के करके उसके तहत उसको तालीम देता है और उसकी तरबियत करता है, और यही वक्त का तकाज़ा भी है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मदारस के अंदर ज़्यादा मार पिटाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वफाकुल मदारस के ज़ेर इंतज़ाम जितने मदारस हैं उनमें ये बात सख्ती से मना की गई है हमारे अकाबिर की तरफ से कि किसी उस्ताद को ये हक़ हासिल नहीं है अभी कि वो किसी भी तालिब इल्म की इस तरह मार पिटाई के ज़रिया उसको तालीम के ऊपर मजबूर करे। इसलिए कि तालीम जो है ये दोस्ताना माहौल चाहती है और अच्छा खुशगवार माहौल चाहती है। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि ये मनफी प्रोपेगेंडा है, इसका इस मौजूदा वक्त के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इसके अलावा बाज़ मदारिस पे ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो बच्चों को मेन्यू जो है अच्छा नहीं दे रहे होते खाने के हवाले से। सुबह उनका नाश्ता अच्छा नहीं होता है, दिन को खाना अच्छा नहीं होता है, उनको आप क्या कहेंगे? मोहतरम, ऐसी तो कोई बात नहीं है जिस मदरसा के अंदर इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले वो पुराने दौर की बात है कि मदारस के अंदर पढ़ने वाले तलबा को दरवेश कहा जाता था कि, और ये अपना बर्तन घुमा करते थे सुबह के वक्त भी, और जिस घर के अंदर डाल देते थे, जिसके पास कावा होता था वो कावा डाल देता, जिसके पास सब्ज़ी होती वो सब्ज़ी डाल देते। तो इस तरह वो घूम फिर के बच्चे अपना राशन इकट्ठा करके लाते थे। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारस के अंदर लोग जो है वो बहुत अच्छा ताउन करते हैं, और मेन्यू के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये मशहूर है कि मदारस वाले तलबा और तालिबात और मौलवी और कुर्रा जो हैं वो हफ़्ते में 3-3 4-4 मरतबा बकरे का गोश्त खाते हैं, और उमरा जो है वो शिकवा करते हैं कि हमें साल भर भी बकरे का गोश्त खाना नसीब नहीं होता। तो ये दीन की तालीम की वजह से, इसकी बरकत की वजह से है कि लोग इसके ऊपर खर्च करते हैं। और ये जो मेन्यू है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा के अंदर तो 3 टाइम तलबा को सैर होकर खाना खिलाया जाता है। सुबह नाश्ता भी बेहतरीन होता है, दोपहर का खाना भी बेहतरीन होता है, रात का खाना भी बेहतरीन होता है। और बाज़ मदारस के अंदर उनकी अपनी तरतीब होती है, बाज़ मदारस के अंदर 2 वक्त का खाना होता है, एक सुबह नाश्ता होता है और शाम को खाना होता है, तो वो भी भरपूर अंदाज से होता है। इस तरह उसमें भी खाने में कमी नहीं होती है। अच्छा मौलाना, ये आपकी मौजूदगी में मदरसे की तादाद बढ़ी है, ये इससे पहले भी थी? मोहतरम, तादाद जो है ये हर दौर के अंदर बढ़ती रही है। इसका पहले मौलाना इशफाक साहब रबानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना के अंदर भी हमारे इस इदारा के अंदर अच्छी तादाद थी। अब उनकी रहलत के बाद जब ये ज़िम्मेदारी मेरे सर पे आम पड़ी है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद के अंदर तकरीबन निस्फ़ इजाफ़ा हुआ है। मौलाना की रहलत के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये हज़रत की बरक़ात हैं और उनकी मेहनत और उनकी दुआओं का नतीजा है, वगरना हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, ना ही इल्म है ना ही अमल है, सिर्फ़ एक बुत ही है आपके सामने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कामिल बना के अपने दीन का काम ले। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम की करामात बहुत मशहूर हैं, नाज़रीन को सिर्फ उनकी कोई एक करामत बता दें। थी तो एक जो उनका मशहूर वाक़या है वो है वो साईं रफ़ीक साहब का वाला। यहाँ साईं रफ़ीक साहब एक मजज़ूब इंसान था, यहाँ उनका इंतकाल हो गया, फारूक कोटा से उनका ताल्लुक़ था। वालिद साहब जब 2005 में हज के लिए गए थे तो मेरी वालदा भी साथ थी, मामू भी साथ थे, मेरे बड़े भाई मुफ्ती साहब भी साथ थे। वहाँ पे ये एक तसव्वुफ़ के साथ इस बात का ताल्लुक़ है कि वहाँ पे जो अहलुल्लाह होते हैं, औलिया कराम अक़ताब जो हैं, उनका एक सालाना इज्तिमा होता है बैतुल्लाह के अंदर, और वो हज के महीना के अंदर होता है, एक रात के अंदर। तो एक रात को वालिद साहब ने अपने इन तमाम साथियों से कहा कि आज जल्दी सो जाएं और सुबह हमने जल्दी हरम के अंदर जाना है। और जब हरम के अंदर जाना है तो जाने के बाद उन्होंने बताया कि हमने क्यों जाना है हरम के अंदर। तो वो उस सहरी को जाने के बाद वापस जब लौटे अपने कमरे के अंदर दिन को, तो फिर बताया कि हम इस हरम में जल्दी क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आलुल्लाह जो औलिया कराम हैं, अक़ताब हैं, जिनकी तादाद हर दौर के अंदर 40 होती है, वो कभी कम नहीं होती है, उनका इज्तिमा होता है। और वो बैतुल्लाह के अंदर बैठ के अपनी जो है सालाना कारगुजारी पेश करते हैं और मुख्तलिफ उनके अमाल होते हैं। तो उसके अंदर जो शामिल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़र्रब बन जाता है। इसलिए उन्होंने अपने जो हमसफ़र थे इनको उसमें शामिल किया। और दूसरा ये था कि जब वहाँ से हरम से वापस बाहर निकले तो ये जो साईं रफ़ीक साहब थे, ये अपनी असल हालत के अंदर वहाँ पे इनको पाया गया, इनको वहाँ पे इन्होंने देखा। वापस जब यहाँ आए तो यहाँ बाज़ार के अंदर ये दुकान है, यहाँ गली के साथ, तो साईं रफ़ीक साहब वहाँ बैठे हुए थे। तो वालिद साहब ने मुफ्ती शफ़ीक साहब से कहा कि आप इनको पैसे दें। तो उन्होंने पैसे निकाल के दिए, तो उन्होंने हंस के ले लिए। फिर घर जाके उन्होंने इनकी बात बताई कि हम जब हरम के अंदर थे तो ये साईं रफ़ीक हमारे साथ वहाँ हज के अंदर मौजूद था। ये उनकी ज़ाहिरन करामत है, और बहुत सारी और भी करामात हैं। तो करामात औलिया हक़ ये बरहक हैं, लेकिन जो मौजज़ा है, मौजज़ा जो है वो ईमान का हिस्सा होता है, और करामात जो है ये ईमान का हिस्सा नहीं होती है, ये शरई दलील नहीं बन सकती हैं। करामात तो अच्छा, बरहक है लेकिन शरई पहले दलील नहीं बन आप यहाँ पर किसी ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अब आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हुई है, तो आप इस ज़िम्मेदारी को कैसा महसूस करते हैं? मोहतरम, ये ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पहले मैं मौलाना के साया के अंदर था, हमें कोई परवाह नहीं होती थी, कोई किसी बात की कमी बेशी की हमें परवाह नहीं होती थी। लेकिन जब भी
آپ کسی ادارہ کے سربراہ بنیں یا گھر کے سربراہ بنیں تو اس کے اندر بہت ساری مشکلات بھی ہوتی ہیں. اپنی ذات نہیں ہوتی بلکہ پورا علاقہ اور پورا مرکز جو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ ساری بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا بوجھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو ساتھی ہیں علماء کرام، ان کے دعاؤں کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ الحمدللہ وہ میرا بوجھ جو ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے. اور ہماری جو منتظمہ کمیٹی ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ بوجھ جو ہوتا ہے یہ بہت ہلکا ہوتا ہے. ان کے تعاون سے ہم انشاءاللہ پہلے بھی چل رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح چلیں گے. عوام کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ اپنے گاؤں میں اس طرح کی عزت نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے. اس سوال کا آپ کیسے محترم، میں 2007 میں فارغ ہو کے کراچی میں جب مولانا میرے پروگرام میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے ساتھ لے کے آئے مجھے. اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس راستہ کے اندر عزت پائی ہے. میں نے کبھی کسی موڑ کے اوپر ہماری اس عوام نے ہمیں مایوس نہیں کیا ہے کسی بھی اعتبار سے. جب بھی ہم نے ان سے کوئی بھی مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی امید ہے کہ اسی طرح پورے کا پورا تعاون کریں گے ہماری عوام. یہ تھے جی دارالعلوم تعلیم الاسلام حنفیہ رجسٹرڈ عباسپور کے محتمم مولانا خلیق الرحمان صاحب، جو ہمیں یہ بتلا رہے تھے ادارہ کی مختصر تعریف. اور انہیں اپنے والد محترم مولانا عطاء الرحمان صاحب جو عباسپور کے ایک ولی کامل تھے. بہت ساری ان کی کرامات تھیں جن میں سے آپ نے ایک کرامت سنی، اور اس کے بعد آپ کی مزید نظر انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان کی مزید کرامات بھی کریں گے. اور ساتھ ہی جو ان سے سوال پوچھا گیا کہ بچوں کو سزا دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا وفاق مدارس العربیہ کا یہ اصول ہے، قانون ہے کہ کوئی بھی ٹیچر کسی بچے کو سزا نہیں دے سکتا. مینیو کے اعتبار سے ان کا کہنا تھا کہ علماء اکرام کے مقدر میں اللہ نے بکرے کا گوشت ہی لکھا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ انہیں کھلا رہا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا، تیسرا سوال جو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنے علاقے میں عزت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ 2007 کے بعد اپنے لوگ عزت دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات آج ہم نے مولانا خلیق الرحمان صاحب سے پوچھے. اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. عدالت کے دوران انہوں نے ٹائم دیا جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد ہم مدارس کے بچوں کی تعداد، کلاسز کا انتظام، اور اس کے بعد آپ کو مسجد کا اندرونی بیرونی حصہ بھی دکھائیں گے. تب تک دیجیے پونچھ ڈسکوری سے محمد اشفاق کو اللہ نگہبان.